Hello, students. Now, moving forward to the last topic of this chapter, we will discuss few questions based upon the adjustments of reserve, revaluation account, goodwill, all together in a single question. So, as you can see, the question number 39, there are three partners A, B, and C who are sharing profits in the ratio of 2:1. From 1st April 2019, they decided to share future profits and losses equally. The following balances appeared in their books. क्या क्या balances हैं? There is profit and loss account balance, credit balance of 20,000. There is advertisement suspense of 15,000 and there is workman compensation reserve of 60,000. Now, if the partners want to distribute, तो जो प्रॉफिट है वो डिवाइड हो जाएगा ओल्ड रेशियो में, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ हो जाएगा ओल्ड रेशियो में, एंड वर्क्समैन कंपनसेशन में जितना फ्री रिजर्व बचेगा आफ्टर the claim on workman compensation that will be divided between partners in their old profit sharing ratio. Condition applied कि reserves divide करने को बोला हो या फिर कुछ भी ना बोला हो, ये नहीं मेंशन होना चाहिए कि the partners do not want to distribute reserve. अच्छा, एग्रीमेंट्स क्या क्या हो रहे हैं? The first is goodwill should be valued at 2 years purchase of super profit. Average profit is 75. Capital invested is 6 lakh. You have been given normal rate of return. So by this information we will find the super profit and then goodwill, and goodwill को adjust करेंगे by debiting the partner who is gaining and crediting the partners who is sacrificing. The next is furniture whose book value is 50,000 had been reduced to 30,000. फर्नीचर की बुक वैल्यू कम कर रहे हैं तो देर इज़ लॉस ऑफ 20,000 रुपीज़. देन देर आर कंप्यूटर हुज बुक वैल्यू इज़ 40,000, इनको रिड्यूस करना है बाय 10,000, so there is another loss of 10,000 rupees. Then there is claim on workman compensation of 50,000 rupees. We have reserves of 60,000 and there is loss of 50,000. So कितना बचा भी extra? 10,000. That will be divided between partners in their old ratio. And investments whose book value is 30,000, they are being revalued at 25,000. So here again we are getting a loss of 5,000 rupees. You have to pass journal entries for this. Now there is nothing clarification whether the partners want to distribute reserves, whether they want to record the revised value. So we will assume that they want to distribute reserve and they want to record the revised values. तो जो भी reserves हैं वो divide होंगे old partners old ratio में, जो भी losses हैं वो write off होंगे old partners old ratio में. ठीक है, रीवैल्यूएशन जितने हैं वो आपका प्रॉपर अकाउंट बना के या जर्नल एंट्री के थ्रू जो भी प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा दैट विल बी डिवाइडेड इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. एंड फॉर गुडविल वी विल फाइंड द गुडविल एंड देन व्हाट वी विल डू, वी विल एडजस्ट इट एज नॉर्मल वी डू इन केसेस. वी विल डेबिट द पार्टनर हु आर गेनिंग एंड क्रेडिट दोज हु आर सेक्रीफाइसिंग. So the very first thing we will divide the profit and loss account and write off the advertisement suspense account. The first entry will be of dividing the profit among the partners. So the first entry will be profit and loss account debit 20,000 and it will be credited to A, B and C in their old ratio which is 2:1. So the first entry is profit and loss account debit 20,000 to A's capital account 8,000, to B's capital account 8,000 and to C's capital account 4,000. नेक्स्ट गिवन इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट. अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज अ लॉस डिवाइड करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल होगी कम और पार्टनर्स की कैपिटल कम हो रही है तो उनको करेंगे हम डेबिट. तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट. जो 15,000 का हमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है, लॉस दे रखा है, दैट विल बी रिटन ऑफ अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. ठीक है, प्रॉफिट डिवाइड किया ओल्ड रेशियो में, लॉस को राइट ऑफ किया ओल्ड रेशियो में. द नेक्स्ट इज वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 60,000. नाउ वी ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट फ्री रिजर्व्स आर डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स. जितना क्लेम नहीं है वो रिजर्व डिवाइड करना है. तो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व विच इज फ्री, दैट इज 10,000 अमंग पार्टनर्स. We have got reserve of 60,000. So worksman compensation reserve will be debited by 60,000 rupees. Claim कितना है 50,000, तो to claim on worksman compensation 50,000 rupees. And the remaining 10,000 will be divided between A, B and C in their profit sharing ratio, old profit sharing ratio which is 2:1. That is 4,000 to A, 4,000 to B and 2,000 to C.
ठीक है, तो अभी हमने पुराने रिजर्व्स कर लिए, लॉसेस कर लिए. द नेक्स्ट स्टेप इज रीवैल्यूएशन. रीवैल्यूएशन में हमें क्या करना है, जो एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तीनों एसेट्स की वैल्यू कम ही हो रही है. फर्नीचर की 20,000 कम हो रही है, कंप्यूटर की 10,000 एंड इन्वेस्टमेंट की 5,000. अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है, इट इज़ अ लॉस, दे विल बी क्रेडिटेड एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी debited. So the entry will look something like this: revaluation account debit by 35,000. And where this 35,000 came from? To furniture account 20,000, to computer 10,000, and to investment 5,000. So the total loss is 35,000. Now this 35,000 loss will be written off between the old partners in their old ratio. So we will divide this 35,000 among A, B and C. They will be debited in 2:2:1. A will be debited by 14,000, B will be again also debited by 14,000 and C will be debited by 17,000. हमारे पास तीन पार्टनर्स थे, तीनों में हमने राइट ऑफ कर दिया. सो वी हैव डिवाइडेड द प्रॉफिट्स, वी हैव रिटन ऑफ द एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वी हैव डिवाइडेड द वर्क्समैन कॉम्पनसेशन ऑफ द फ्री वन. Claim has been given for 50,000, the remaining 10,000 has been divided. And then for the changes in the value of assets, we have made revaluation account debit to assets जिसमें loss हुआ है, and then that loss has been divided among the partners in their old profit sharing ratio. The last adjustment which is left is about goodwill. Goodwill के लिए आपको क्या करना है, you have to pass an adjustment entry. Goodwill के लिए हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे. तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए. फर्स्टली वी नीड द गेन एंड सेक्रीफाइस. ओल्ड रेशियो अमंग ए, बी एंड सी वॉज 2:2:1 and the new ratio is equal, that is 1/3 to A, B and C each. तो इसमें हमने क्या करना है, old minus new, you will get that A and B both are sacrificing 1/15 whereas C is gaining 2/15. ठीक है, दो ने सेक्रीफाइस किया है, एक ने गेन किया है. तो जो गेन करेगा he will be debited, C will be debited and A and B both will be credited because they are sacrificing. But for this we need to find the value of goodwill. The question states that goodwill is to be valued at 2 years purchase of average super profit of last few years. The average profit has been given 75,000. We have to find the normal profit, for which we have been given capital employed which is 6 lakh and the normal rate of return is 10%. So 6 lakh पे 10% हमें मिलेगा तो we will get 60,000 rupees normal profit. सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट है 75 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 60, यू विल गेट सुपर प्रॉफिट 15,000. गुडविल की वैल्यू कितनी है, 30,000 आ जाएगी. 2 years परचेज बोला, सुपर प्रॉफिट 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 30,000 रुपीज़ हो गई आपकी गुडविल. नाउ द फाइनल स्टेप इज टू पास द एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल. सी विल बी डेबिटेड बाय 2/15 multiplied by 30,000 which is 4,000 and A and B both will be credited by 1/15 of 30,000 which is 2,000 each. So this is how we will pass entries for this particular question. Now moving to the next question number 44. There are three partners L, M and N who are sharing profit and loss in equal proportion. On 31st March their balance sheet was as follows. There were creditors of 58,000 rupees. There is reserve and surplus of 42,000 rupees. There is capital accounts of L, M and N 2 lakh, 1 lakh and 80,000. There is cash of rupees 80,000. Debtors of 75,000. Provision of 3,000. Stock 1 lakh 80 and fixed assets 2 lakh 20,000. The partners have decided that from 1st April they will share profit in 4:2:1. गुडविल की वैल्यू करनी है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. ठीक है, लास्ट 4 years का प्रॉफिट हमें गुडविल कैसे निकालनी है. गुडविल आ जाएगी आपकी 20,000 का लॉस है, 48,000 प्रॉफिट है, 60,000 प्रॉफिट है, 80,000 प्रॉफिट है. चारों को प्लस करोगे, डिवाइड बाय 4 यू विल गेट एवरेज प्रॉफिट एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 यू विल गेट द अमाउंट ऑफ गुडविल. व्हाट हैज़ बीन एग्रीड, प्रोविजन इज टू बी इंक्रीज बाय 2,000, लॉस होगा. स्टॉक को अप्रिशिएट करना है 20%, फ़ायदा होगा कितने का, 1,80,000 का 36,000. फिक्स एसेट्स को डिप्रिशिएट करना है बाय 10% तो 22,000 लॉस.
creditors has to be taken as 49,000, so there will be a loss of there will be a gain of 9,000. Partners do not desire to record the revised values of assets and liability in the books. They also desire to leave the reserve and surplus undisputed. You have to give the effect of change in profit sharing ratio by passing a single journal entry. So we don't have to distribute the reserve, we don't have to record the revised value. तो केवल एक सिंगल एंट्री के अंदर एडजस्ट करना है. सबसे पहले निकालेंगे कितना हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है रीवैल्यूएशन में. तो आप देखो यहाँ पे लॉस कहाँ हो रहा है. डाउटफुल डेट का प्रोविजन इंक्रीज हुआ, लॉस हुआ. फिक्स एसेट डेप्रिशिएट हुए, लॉस हुआ. इन दोनों में लॉस हो रहा है. एंड जो स्टॉक एप्रिशिएट हो रहा है और क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, इनमें प्रॉफिट हुआ. तो ओवरऑल अगर आप देखें सोल्यूशन में, तो देयर इज लॉस ऑफ 24 एंड गेन ऑफ 45. सो ओवरऑल प्रॉफिट में हमें आगे कहते हैं रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है 21,000 का. दैट इज द फर्स्ट थिंग. प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज 21,000. और क्या एडजस्ट करना है? वी हैव टू एडजस्ट द रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व्स कितने हैं? 42,000. ये भी प्लस कर लीजिए. 21 प्लस 42. अब गुडविल भी ऐड करेंगे. तो गुडविल ऐड करने के लिए पहले हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी. गुडविल कैसे निकालेंगे? पहले एवरेज प्रॉफिट, 4 ईयर्स का प्रॉफिट प्लस किया, डिवाइड बाय 4. एवरेज इज 42 और गुडविल बोलिए 2 ईयर्स परचेज पे. गुडविल हो जाएगी 84. तो व्हाट अमाउंट वी हैव टू एडजस्ट इज 21,000 ऑफ रिवैल्यूएशन, 42,000 ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस एंड 84,000 ऑफ गुडविल. सो टोटल 1,47,000 हैज़ टू बी एडजस्टेड. अब एडजस्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? गेन एंड सेक्रीफाइस. देखो यहाँ पे आपको ये नहीं बोला आपको राइट ऑफ करना है कुछ भी या डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको केवल एडजस्ट करना है. तो एडजस्ट में केवल आपको टोटल एडजस्टमेंट फिगर देखनी है, ठीक है. एंड द सेकंड थिंग विच यू नीड इज यू हैव टू नो द अमाउंट ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस. द ओल्ड रेशियो है इक्वल एंड द न्यू रेशियो इज 4:2:1. ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है. तो आपने उसको कैलकुलेट करके आपको निकालना है कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है. तो इस क्वेश्चन में एल गेन कर रहा है, एम और एन सेक्रीफाइस कर रहे हैं. एल ने गेन किया है 5.21. तो जो हमारा 1,47,000 आया था ना अमाउंट टू बी एडजस्टेड, तो 1,40,000 का 5/21 यानी एल को हम डेबिट करेंगे 35,000 से, एम और एन को हम क्रेडिट करेंगे 7,000 और 28,000 रिस्पेक्टिवली. सो द जर्नल एंट्री विल लुक समथिंग लाइक दिस. एल विल बी डेबिटेड बाय 35, एम विल बी क्रेडिटेड बाय 7,000 एंड एन विल बी क्रेडिटेड बाय 28,000. अब देखो इसका बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट आएगा? एसेट्स, लायबिलिटीज, रिजर्व्स कुछ भी चेंज नहीं होगा. एवरीथिंग विल रिमेन एज इट इज. केवल एल, एम और एन की कैपिटल चेंज होगी. एल डेबिट हो रहा है यानी कि उसकी कैपिटल 35,000 कम हो जाएगी और एम और एन की कैपिटल 7,000 और 28,000 इंक्रीज हो जाएगी. तो अगर आप बैलेंस शीट देखें सोल्यूशन की, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा. एल की कैपिटल जो पहले 1,30,000 थी, नाउ इट इज़ 1,65,000. सॉरी वो 2 लाख थी, वो अब डिक्रीज होके हो गई है 1,65,000. एम की कैपिटल जो पहले 1 लाख थी वो अब इंक्रीज होके 1,07,000 हो चुकी है. और एन की कैपिटल जो पहले 80,000 थी वो अब इंक्रीज होके 1,08,000 हो चुकी है. बाकी कोई भी एसेट, कोई भी लायबिलिटी हम लोग चेंज नहीं करेंगे. सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन विल बी डन. नाउ वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस चैप्टर. So just keep practicing, keep learning and stay safe at home.